Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Generative AI. Nature is a lovely forest. So, inshallah, at some point today, How we will be sending it you could be. the resources Is for your reading assignments. So, nature you'll be reading at least four nature papers as hardly part of this you are course, using and we'll be sending you some really good resources on both in how to go about reading research papers, challenging you specifically how to go about reading what you regard मशीन लर्निंग रिसर्च पेपर्स real अगर applications. आप उनसे रिक्वेस्ट कर दें आवाज़ थोड़ी कम ओ आ गए The speed ठीक थैंक यू in your mind हेलो 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 ठीक है then साउंड्स गुड थैंक यू anyway so specifically how do you go about reading machine learning and deep learning and these research papers just because there are just think too many about every day there is a groundbreaking paper so how do you are uh, as catch up and how do you remain up to date for and then finally how to a write a paper graduate so which when हमारा जो मकसद है इस readers कोर्स से ऑल्दो something कि हमने खाली आपसे पेपर पढ़वा कर in उसके your mind थॉरो क्रिटिकल are एनालिसिस करवाने हैं और उस पर एक क्विज लेना है जैसे आप लोगों को पहले मालूम है but we thought that while we are making you read these papers and these are some of these are really influential papers And it's so good why to be not here. you look at Good to them be here. from the lens of choosing a problem and writing a paper जब आप वो काम कर ही रहे हैं और अगर पेपर राइट करने की कुछ अच्छी टेक्निक्स होती हैं प्रॉब्लम ढूंढने की कुछ अच्छी टेक्निक्स होती हैं तो व्हाई नॉट I thought हैविंग दोज इन योर रैम एज वेल hi. सो आज जो हम आपको रिसोर्सेज दे रहे हैं दिस इज नॉट एन असाइनमेंट दिस इज जस्ट अ लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज देयर आर सम Did you think? recommendations by top conferences in Well, machine learning I guess वो I'm हम used आपसे to शेयर कर रहे हैं being कुछ Southern टॉप Africa, यूनिवर्सिटीज के recommendations हैं for reading and writing small research village papers in and South some really Africa good with podcasts with absolutely experts in the no domain consciousness, जो इस बारे में no डिस्कस कर रहे हैं कि how do you and read a research paper and how do you write a research paper my strong recommendation would be some of my please do go through at heroes least like some of them Tyson and so on. and then when you are going Obviously, through your reading we assignment haven't made much progress, you will find कि आप उनमें से बहुत सी चीजों को you will be able to cool. spot in those So papers I in guess fact you'll also be able to until spot some of those things next week, missing in those I'll papers so those top start papers really influential papers और आप preparing. कहेंगे नहीं नहीं wait a minute इसने तो वो वाली चीज नहीं Yeah, की हुई या वो चीज की हुई है जो brain dead recommendation में मना किया जाता है and that's with how a it lot of goes noise, like and not so every paper useful for is specific written to questions. the best and not every paper needs to be the best of So language in obviously order to AI can do impact the lots of domain things, but I all think this right with conversation that needs to और बाय द वे be आपको जो आपकी पहली रीडिंग असाइनमेंट है वो इंशाल्लाह like होपफुली to बाय मंडे come up with मिल some जाएगी क्योंकि ideas मंडे को जो हमने about कवर करना है वो उसी के ऊपर specific उसी breakthroughs की एक्सटेंशन है वो that फर्स्ट रीडिंग are असाइनमेंट driving you and all your right company. so today we'll be So starting one of the our big first things that thorough in Tyson and depth I've always talked topic about is so हमने अब with तक क्या कुछ getting किया है we have just overviewed the entire so semester कि the हमने क्या big करना है meta so now you have a map in your head um, कि कहाँ से कहाँ check points हैं और किधर से किधर जाना है introduced so the first this checkpoint is data where you have not your too much textual like a human brain sequence to and you comprehend chop in it up some many you cases. But tokenize it. one of the So we're going to go into the details of like tokenization. We're going to go parts over multiple of the algorithms. data and then Again, extract out know some it कि इस सब conclusions कुछ में आपकी काफी and रीडिंग खुद making से दरकार होगी. some conjectures. Do not consider for this graduate course, do not So consider the lectures message is alone to be great, sufficient. but We will be sometimes covering things, to but you would need your to go through the papers or the So resources or the books this on your own to get a also more works thorough and for in-depth understanding. So जो तीन methods हमने आज um, primarily cover करने हैं, these are results the three out methods which are of used England um, under 11 यानी between the three, with they cover most of the modern as well. large language models and most of the modern Right, systems जो हमारे पास हैं. Wales, I think. इन तीनों के papers के links मैंने आपको यहाँ शुरू में दे दिए हैं. Yeah. Not all of them have a paper of their own. Some of them came out as part of another paper. So सिर्फ उसका एक Okay. section है जो इनको discuss कर रहा है. Just chatting. But here are the papers, Love and I'm talking to Jeff. expecting that you will be reading Yeah. these papers. So the reading assignments are four, but Right. almost every topic will have multiple papers that अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी understanding Okay. और thorough होती जाएगी. What I Okay, did let's begin. actually got me So as we already know, quite tokenization is the process of rather splitting the than text into smaller units sitting called face to face tokens. with the England team and इन studying टोकन्स को हम किसी भी लेवल पर because it was in डिफाइन कर next सकते week. हैं डिस्क्राइब कर सकते हैं आपको याद होगा जब मैंने आपको पहले टोकनाइजेशन की बात ओवरव्यू में बताई थी As तो वी training जस्ट टॉक्ड अबाउट टोकनाइजिंग एट द wheels वर्ड लेवल together. at the sentence level, So at the paragraph level, the at the physical sort of document level. elements to some of you remember Now used to let's go in the other direction. the So the spark tokens are mechanism. usually defined at the word, I remember actually subword, thinking about the chess style character, and actually just or fascinated byte level. that this lump of Okay, plastic someone had why did I programmed have to say byte? to be smart Character तक पहुंच के बात and खत्म नहीं हो गई थी. chess to a really high standard. वर्ड सब I was वर्ड amazed कैरेक्टर व्हाई डू आई नीड टू से कि एक और भी टोकनाइजेशन का तरीका है व्हिच इज अ बाइट लेवल टोकनाइजेशन हु कैन the आंसर thought हु process कैन टेल मी सो बोलना नहीं हाथ खड़ा करना है and then maybe how we could व्हाई इज इट कैरेक्टर इनफ कैरेक्टर से आगे बाइट कहां पर so व्हाट वुड yeah बी द सिनेरियो changed my whole life with really
ओके, अगला अगला जुमला बोल दूंगा तो फिर आपके सोचने को कम चीजें रह जाएंगी. So what's the difference? Why am I saying character and byte both? Uh, yes, but think of a more common scenario. But we're still dealing with just text here. Text में कब ऐसा होता है कि बाइट और कैरेक्टर के बीच में वन ऑन वन कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं होती? ये तो आसान सा सवाल है. तो क्या होगा? यस, तो जी, यूनिकोड. उसकी बात हम आगे जाकर अभी करेंगे. योर ASCII was just good enough for your English, your Latin character set. जैसे ही वहां से बात आगे बढ़ी, हमने वो बाइट का हिस्सा छोड़ दिया. अब हमारे कैरेक्टर्स बाइट आमतौर पर नहीं होते. सो देर आर डिफरेंट एनकोडिंग्स, कुछ में होते हैं, कुछ में नहीं होते, कुछ में देर अप टू 4 बाइट्स. वो हम बात आगे जाकर करेंगे. सो दैट्स व्हाई बाइट लेवल एनकोडिंग स्कीम्स आर डिफरेंट फ्रॉम कैरेक्टर लेवल एनकोडिंग स्कीम्स, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट थिंग्स. ऑल राइट. So the purpose of this, as we already know, is to enable models to operate on discrete language units rather than raw strings. Each token will be represented eventually as a scalar or a vector. So जो important बात है ना, in fact, there is a paper about why it is crucial to understand tokenization when you're dealing with large language models. So the problems boil down all the way down to the token level. So what you need to understand is कि वो जो कुछ भी sequence में prediction होगी, जब भी कभी आप ये कह रहे होंगे कि इस टोकन के बाद नेक्स्ट टोकन कौन सा आता है, उसकी डिस्क्रिप्शन इस बात पर बेस्ड होगी कि टोकनाइज हुई क्या चीज है. सो इट्स नॉट ऑलवेज कि ही टर्न्ड हिज होमवर्क के बाद डैश का मतलब इन आएगा. हो सकता है खाली के के बाद अगला कैरेक्टर प्रिडिक्ट करना हो, इफ इट्स अ कैरेक्टर लेवल टोकनाइजेशन. हो सकता है खाली के की एक बाइट की बेस के ऊपर प्रिडिक्ट करना हो कि अगला क्या है, या एक सेट ऑफ बाइट्स के ऊपर प्रिडिक्ट करना हो. So whatever you're encoding in your embeddings is essentially whatever you have tokenized in your tokenization step. It could be a word, it could be a subword, it's usually a subword, it could be a character, it could be a byte. ठीक है. So ये जहन में बहुत क्लियर रखना है कि इस चीज का मकसद क्या है जो हम करने लगे. So and obviously as we know neural networks and other models that we use, they need to deal with scalars and vectors, they need to deal with numbers. So we need to come up with a way of converting them to numbers, which will be our next topic. So once we tokenize, then we see how we convert these to numbers. Okay, and you can clearly see, so here's an example. I can't believe it's not butter. So the word level tokenization, one possible word level tokenization could be this. Space की base पे tokenize किया हुआ है और ये can't के बीच में भी ये t अलग हो गया है. So I can't believe it's not butter. So that's one possible tokenization. There could be many other ways of tokenizing this even at the word level. So we did not tokenize, for example, this apostrophe and this apostrophe, whereas we decided to tokenize this exclamation mark. So all of these are decisions that you need to make as if you're writing your own tokenizer, or at least you should be aware of when you're using a particular tokenizer for an LLM. Okay, so again, going back, when we say tokenize at word level, what are we counting? Or even when we say tokenize at subword level, what are we counting? We're counting things as it is. So we are just counting the surface forms. जैसे अभी आपने देखा है, अगर मेरे पास boy और boys होगा, तो ये दो दो अलग अलग tokens हैं. ठीक है, ये एक चीज नहीं है, ये दो चीजें हैं. वो जो ये एक चीज बनती हैं उसको लिंग्विस्टिक्स की जबान में हम लेमा कहते हैं. लेमा को आसान तरीन समझना, अगर ये मुश्किल डेफिनेशन चक्कर में नहीं पड़ना, आसान तरीन इसकी एग्जांपल ये है जो आपकी डिक्शनरी एंट्रीज होती हैं. सो इफ यू गो टू योर कैम्ब्रिज डिक्शनरी और योर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वटेवर, उसके अंदर जो एंट्रीज हैं दोज आर द लेमास. लेमास आर द थिंग्स, द हेड वर्ड्स जो सेमेंटिकली एक मीनिंग रखते हैं, जिनके अराउंड लैंग्वेज अपना काम कुछ ना कुछ करती है. फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेक्शनली उनको प्लूरल कर रही है, उनको पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर रही है डिपेंडिंग ऑन अगर वो वर्ब्स हैं, उनको निगेट कर रही है, अन और इन लग रहा है, इस किस्म की चीजें हो रही हैं. दीज आर फिनोमिनन्स ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड डेरिवेशन, द टू दैट आई डिस्क्राइब इन दिस ऑर्डर. ये वो चीजें हैं जो लेमास पे हो रहे होते हैं. बट यू डोंट नीड टू नो दैट इन अ लॉट ऑफ डिटेल. ऑल यू नीड टू डू इज टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं इस जुमले को टोकनाइज कर रहा हूँ तो ये इसी तरह ही कर रहा हूँ. फॉर्म्स खुद एक टोकन होगा अगर मैं वर्ड लेवल टोकनाइजेशन कर रहा हूँ. फॉर्म्स और फॉर्म दो अलग अलग टोकन होंगे. ठीक है, that's what we mean. Okay, and we discussed last time that there's a concept of types which essentially dictates your vocabulary. So types are essentially just the unique tokens that you have. अब चाहे वो byte level है. अच्छा, अब इस मौके पे ना I really want each and every one of you should be thinking about, okay, what would it mean to have word types at the byte level?
Okay, if we are saying byte, that means 8 bits. 8 bits can hold at max how many different combinations? 256. So that means that the maximum number of types, even before looking at anything, the maximum number of types is 256. Done. इससे ज़्यादा ऊपर नहीं हो सकता. ठीक है? Whereas if I'm defining it at the word level, my vocabulary, my number of types is not even countable. मतलब उसका कोई number नहीं है. It's something जो कि कुछ भी हो सकती है. It could be in millions or billions or trillions or whatever. जितने भी आपने unique किस्म की उसको strings दी हुई हैं. So notice this, notice these trade-offs. Think about these. कि ये क्या हो रहा है और different level पे tokenize करने का क्या मतलब होगा. Okay, so you have your types and tokens. I want you to take this string and byte tokenize this. Sorry, not byte. Word tokenize this. So tokenize this at the word level. करें और मुझे आपने सिर्फ बताना है n क्या है और v क्या है. So we use capital N for tokens and we use capital V for types. So आपने मुझे n और v बताना है खाली इसका. By the way, how many of you know what this string is? How many of you have ever seen this string before, this sentence before? You have? You have? What's so special about it? It's a complete sentence. It's a complete sentence. It's not buffalo written 8 times. It actually has a meaning. It's a complete sentence in English. We'll सिर्फ अपने enjoyment के लिए हम इसका मानी भी देख लेंगे अभी, लेकिन फिलहाल आपसे मेरा सवाल खाली types tokens का. Sir. 8 and 2. Okay, why did you? Good. I like your answer. Why did you say 2 types, not 1? Capital. So, पहला सवाल जो सीधा सीधा ही आ गया एक लैंग्वेज के ऊपर. इंग्लिश इज अ केस्ड लैंग्वेज. डिफरेंट केसेस यूज करती है अपने कैरेक्टर्स के. क्या केस की बेस के ऊपर टाइप चेंज होगी या नहीं, क्योंकि जितना कुछ इससे पहले कहा है उसमें हम सरफेस फॉर्म कह रहे थे. एंड यू विल सी दैट अमंगस्ट द टोकनाइजर्स जो आप बाद में यूज करेंगे, देयर आर बोथ टाइप्स. बर्ट के साथ दो किस्म के टोकनाइजर्स आते हैं. बर्ट अनकेस्ड जो कि उसका ज्यादा फेमस टोकनाइजर है, और बर्ट केस्ड जो कि केस को प्रिजर्व करता है और वो उसका दूसरा टोकनाइजर है. अनकेस्ड का मतलब ये है कि अब केसेस की बेस के ऊपर आपकी टाइप्स नहीं बदलेंगी. केस्ड का मतलब है कि जैसे इन्होंने कहा कि इसके अंदर 2 हैं. ठीक है, अगर मैं इसको अनकेस्ड समझूं तो इसमें खाली 1 टाइप है और 8 टोकन्स हैं. ठीक है, बाय द वे दिस सेंटेंस मींस, सो बफेलो का मतलब क्या होता है? दिस इज आल्सो गिव यू द एम्बिग्युइटी ऑफ इट. बफेलो क्या होती है? एक तो भैंस होती है. ठीक हो गया. एक जगह है. ठीक है, शहर का नाम है, जगह का नाम है. तीसरा, the verb of it, to buffalo someone, is less commonly used. It means to bully someone. So buffalo buffalo की रहने वाली buffalo, buffalo जिसको buffalo की रहने वाली buffalo करती हैं, यानी उसको डराती धमकाती हैं. बफेलो वो खुद भी डराती धमकाती है. बफेलो की रहने वाली बफेलो उसको. लम्स का वो बच्चा जिसको लम्स के बच्चे बफेलो करते हैं, वो लम्स के बच्चों को बफेलो करता है. Essentially, if you're the buffalo, then that's what it means. So yeah, it's a complete sentence. Language could be this interesting. बेचारे लैंग्वेज मॉडल्स पे क्या गुजरती है ये उन्हीं के दिल को पता है. आप पता नहीं क्या क्या कुछ कर सकते हैं जबान के साथ. सर, good question. Yes, a great question. Punctuations, again, you could have said 3 types and you could have said 9 tokens. That would have been perfectly fine. Unless you define these rules कि मैं स्पेसेस कैसे डील कर रहा हूँ, मैं स्पेशल कैरेक्टर्स कैसे डील कर रहा हूँ, मैं इमोजीज कैसे डील कर रहा हूँ, मैं जो है केसेस को कैसे डील कर रहा हूँ. जब तक ये नहीं मालूम, इसके ऊपर आप किसी भी डायरेक्शन में डिसीजन लेके, यू नीड टू जस्ट स्टेट योर assumption, and that would have been a valid tokenization as you were saying. All right, ये खुद ही पढ़ लीजिएगा. जो इंपॉर्टेंट चीज ये थी. और बाय द वे, व्हेन यू आर डेवलपिंग अ कॉर्पस, तो आपसे बड़ी जल्दी ना, जब आप दुनिया में निकलेंगे ना, आपसे ये सवाल बहुत पूछा जाया करेगा. हम इस मॉडल को फलानी एक्यूरेसी तक ट्रेन करना चाहते हैं, हम कितनी बड़ी कॉर्पस जनरेट करें? एंड इन मोस्ट केसेस द ऑनेस्ट आंसर वुड बी, आई डोंट नो. Why would I know that? It depends on a million things. But कभी कभी इस सवाल को you'll be able to transform into a simpler question. For example, the question of diversity, the question of distribution. So for example, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ मेरी corpus जो है उसमें at least V types हों.
तो उसकी vocabulary कम से कम 63,000 हो, let's assume, और मैं word based कर रहा हूँ. So then we have relationships like these which roughly govern if your vocabulary is V and if your number of tokens is N, then there is this relationship that the number of types increases at least as the square root of the number of tokens. This is true for word level tokens. ये बाकी सबके लिए true नहीं है. Word level tokens के लिए ये true है. But when you're actually gathering stuff from the real world, you are usually gathering it in the form of words. तो लिहाजा ये एक अच्छी प्रॉक्सी आपको मिल जाती है इस अंदाजे की कि आपको कितने चाहिए. ये दिस इज जस्ट अ स्लाइड जस्ट फॉर यू, अगर खुद इंटरेस्ट हो तो पढ़ लीजिएगा कि व्हाई वाज इट लाइक दैट. ये सब कुछ आएगा जब हम मल्टी हेडेड अटेंशन कर रहे होंगे. ये उस वक्त जाके इंपॉर्टेंट होगा. ट्रांसफॉर्मर की मल्टी हेडेड अटेंशन जब आएगी ना, तब हम ये बात करेंगे. ओ वाओ, बफलो 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 बफलो. तो या इट्स दैट. ओके, ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन. ये इसकी मुझे अभी जरूरत नहीं है, मैंने उर्दू का काम अभी आगे जाके करना है, वो थोड़ी देर में करेंगे. Let's continue this. All right. So the importance of it we know. हम already देख चुके हैं. Language variations को deal करने के लिए ये सब मैं आपको word level tokenization के अंदर करवाता हूँ. So I don't need it right now. Uh, yeah, but the way you tokenize your text can impact the model performance. It can impact the model size. In fact, in a very major manner. And it can also impact the speed of the training and the inference time. So it's a really crucial decision to make कि tokenization कौन सी करनी है और क्यों. So therefore we need to understand कि क्या है. All right, ये हम already बात कर चुके हैं. So you have a sentence like this, for example, इसके ये tokens बन गए. You can see कि have the इसने अलग कर दिया, arts अलग कर दिया और who अलग कर दिया, और उसके बाद इन सबको token IDs में convert किया. इस piece of information को अपने जहन के कोने में रख लें कि ये जो token ID है ना, ये रफली आपके वन हॉट वेक्टर की वो वाली इंडेक्स है जिसपे ये वर्ड है. सो ये वन हॉट वेक्टर, रिमेंबर, इट हैड ऑल द वोकैबुलरी. सो इसके अगर मैं शुरू से लेकर आखिर तक इसकी इंडेक्सेस बना दूं, फॉर एग्जांपल इसके अंदर 100 वर्ड्स हैं, तो इंडेक्स 1 से लेकर 100 तक या 0 से लेकर 99 तक ये जा रहा है. सो दिस टोकन आईडी इज यूजुअली जस्ट द इंडेक्स ऑफ दैट वर्ड इन द वन हॉट वेक्टर. ठीक है, तो इससे आप डायरेक्टली वहां पर जा सकते हैं. तो अगर आप अभी थोड़ी देर बाद में आपको करवाऊंगा, आप अपनी जीपीटी की आउटपुट को जीपीटी टोकनाइजर से अगर रॉ फॉर्म में लें, वर्ड बनवा के ना लें, वर्ड बनवाए बगैर लें, तो ऑल यू गोना सी इज थिंग्स लाइक दिस. ये अभी आखिर में क्लास के हम करते हैं, उसको खोलेंगे और उसे देखेंगे कि वो किस तरह से हमें टोकनाइज करके ये सारी चीजें देता. सो दीज आर एसेंशियली वन हॉट वेक्टर्स. तो फाइनल आउटपुट जो है ना, दीज आर द वन हॉट वेक्टर्स which allow us to do a one-to-one mapping to words, जिसको हम आउटपुट कर लेते हैं. सो एसेंशियली हमने करना यही होगा. आज हम यहाँ तक आएंगे और अगली क्लास में हम यहाँ चले जाएंगे कि इसकी एनकोडिंग्स क्या क्या पॉसिबल होती हैं इंशाल्लाह. ओके, लेट्स डू अ लिटिल बिट ऑफ टर्मिनोलॉजी, क्योंकि यूजुअली कुछ मिसकंसेप्शंस होती हैं, स्पेशली व्हेन यू डीलिंग विद मल्टीलिंगुअल सेटिंग्स. एंड नाउ दैट द मल्टीलिंगुअल एलएलएम्स आर एज इंपॉर्टेंट एज in fact way more important than your single language LLMs, जिनको कोई भी यूज नहीं करता. तो लिहाजा आपको ये टर्मिनोलॉजी की समझ होनी चाहिए. द थ्री टर्म्स, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड स्टाइल. Okay, what's language, what's script, and what's style? Language, we roughly understand. So your Urdu, Hindi, Punjabi, ये सब languages हैं. English, French, German, ये languages हैं. एक language से दूसरी language में जाने के process को हम translation कहते हैं. ठीक है? So that's the simplest of all of these. Let's see what a script is. Script is the way you write a language. You encode a language. अच्छा. Some languages have their own scripts. By the way, सुन के लगता है कि सबकी होनी चाहिए. Not all languages are that lucky. A large fraction of, I don't remember the exact fraction, but a large fraction of the world languages do not have a writing style. They don't have a writing. They're just spoken languages. These are the ones that die really quickly, by the way. If people stop getting interested in those languages, and because all of the language was just verbal, बोल बोल के एक दूसरे को बता रहे थे और सिखा रहे थे, जैसे ही एक जनरेशन ने भी उसको सही से बोलना छोड़ दिया completely, वो लैंग्वेज चली गई. Because everything, all the tradition of the language was oral. ठीक है, so ये हो गई एक चीज के राइटिंग होती क्या है जबान की. अच्छा, now can we write a language using the character set of another language? Yes, we can. In fact, you do that a lot. जिसको आप रोमनाइजेशन कहते हैं. ठीक है, रोमन में लिखना कहते हैं. इस चीज के लिए टेक्निकल टर्म है ट्रांसलिटरेशन. ट्रांसलिटरेशन ट्रांसलिटरेशन is just going from one script to another script. It's not going from one language to another language. It's just going from one script to another script. So for example,
मैं ने को आपने लिख दिया मैं ने. This is transliteration, going from one script to another script. Okay, is this a lossless process or a lossy process? Is transliteration lossy or lossless? How many feel it's lossless? Okay, how many feel it's lossy? How many feel that both options were not correct? हमें फंसाया गया है दो ऑप्शंस देके, या आप हमारे साथ हैं या हमारे अगेंस्ट हैं. There should have been a third option. It depends. And the actual answer is it depends. It depends on the phonetic and graphemic ability of the source and target language. The phonetic and graphemic diversity of the source and target language. What does that mean? I have words in one language. I'm writing these as words in another language. Does the target language have a character to represent the same, let's say, sound that I had here? So when I say, okay, दूर क्यों जाएं? My name, and I want to transcribe this into English. I have a again. I do not have an equivalent of the sound ra. So because I don't have an equivalent, I approximate. Hence, the arbitrary spellings or multiple spellings, ambiguity in spellings. Like every time people asking me, spell your name for us. And also the native speakers pronouncing this as agha, which is the right way to do that. They're right. This is true for most of your names, in fact. And it just is not limited to your consonants. It's about the vowels as well. So what do I do with, let's say, तो आगा खान लिख देता तो पूरा कंप्लीट हो जाता, दोनों ही मसले एक ही में आ जाते. So now how do you write this? You have a and you have na in English. You do not have a sound. So you do a kaha. So ka. Hence the problem. So this transliteration problem occurs whenever you go from one language to another, because usually your source and target languages have come from different phonetic bases. और ये अभी हम उन जबानों की बात कर रहे हैं जो कि phonetic languages हैं. Not all languages are phonetic. खैर ये गुफ्तगू लंबी हो जाएगी, मुख्तसर करते हैं. So your script is essentially, अब यहाँ से आपको पता होना चाहिए, मैं बात मुकम्मल कर लूँ फिर मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ. Script essentially is कि आप किस अंदाज में उस जबान को लिख रहे हैं. Urdu is written using Arabic script. ये जो उर्दू लिखी हुई है ना, ये अरबिक स्क्रिप्ट में लिखी हुई है. उर्दू की जो नेटिव स्क्रिप्ट है उर्दू की, रेख्ता की, वो अरबिक स्क्रिप्ट है. पंजाबी is originally written using Gurmukhi. We later on switched it to the Arabic script, जिसमें वो अब लिखी जाती है, जिसको उस जबान के अगर अंदाज से बोला जाए तो शामुखी कहते हैं. शामुखी is the Arabic script, बादशाहों की लिखने वाली स्क्रिप्ट. So पंजाबी इज ओरिजिनल स्क्रिप्ट. अगर आप चैट जीपीटी से पंजाबी में पहली दफा बात कर रहे हैं और आपका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं बना हुआ है और कोई मेमोरी नहीं बनी हुई है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली आपको जवाब गुरमुखी में देगा. लिखकर जब देगा पंजाबी का जवाब गुरमुखी में लिखकर देगा, बिकॉज दैट्स द ओरिजिनल स्क्रिप्ट ऑफ पंजाबी. ठीक है. इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन आर यूजिंग डिफरेंट सबसेट्स ऑफ योर लैटिन या रोमन स्क्रिप्ट. ठीक है. अब मैं एक दो क्वेश्चंस ले देता हूँ. सर, yes, yes, right, 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 yes. सब में यही मसला है, सब में यही मसला है. सो अरबी के साथ ये बाई डायरेक्शनल मसला है हमारा. अरबी के साथ मसला ये है कि टे उनके पास नहीं है. तो अगर आप उर्दू से अरबिक ट्रांसलिटरेशन कर रहे हैं और आपने खाली अरबिक का कैरेक्टर सेट यूज करना है, तो आप टे नहीं लिख सकते. यू विल अप्रोक्सीमेट इट यूजिंग समथिंग एल्स. आप पे नहीं लिख सकते बिकॉज दे डोंट हैव अ पे. सो यू नीड टू राइट इट एज पाकिस्तान. ठीक है. सो वो वहां पे आपको करना पड़ेगा. इनफैक्ट ये स्पीच की क्लास नहीं है, कभी किसी और क्लास में मिलेंगे तो विल ऑल्सो डू एन एक्सपेरिमेंट टू सी के दे कांट इवन हियर इट. इफ यू से पा, दे हियर अ बा. They literally hear a ba. And you also have the same problems with the sounds जो उर्दू के अंदर नहीं है. वो हम सब के भी मसले हैं unless कि हमारी native language कोई और हो.
तो ये मसला अरबिक के साथ बिल्कुल उसी तरह से आता है, इनफैक्ट अरबिक के साथ दूसरी डायरेक्शन में भी आता है, लेकिन उर्दू अभी तक अपने कैरेक्टर सेट को प्रिजर्व किए हुए है. फॉर एग्जाम्पल उर्दू हैज incredible new era of radical abundance, curing all diseases, spreading consciousness to the stars. What's You know, the single? maximum human flourishing. We're out of time, but what's the Urdu last has all of dream? these What's the different dream? characters. This dream question. Modern Urdu speakers pronounce all of them in the same way. Might take a Modern Urdu speakers pronounce all of them as za. What I'd like to use it for In is Arabic, enabling this is people za, to this is understand za, this is fundamentals wa, of the this nature is of reality. wa. So do experiments Separate sounds, hearing differently, completely differently, आप सुन भी नहीं सकते. possible scale for अगर मैं मुंह के अगर आप अरबी में उस तरह से ट्रेन नहीं हुए हुए शुरू से, मैं जब बोलूंगा आप मिक्स करेंगे. You know, मैं I thought it really वो interesting जोए बोल रहा हूँ, in वा कह the रहा हूँ, Bible, या मैं the story वा about the tree of वा life बोल रहा हूँ. doesn't सो work यू वोंट इवन हियर इट. सो um, ये उर्दू में आकर अरबी वापस जा सकते हैं और वो लॉसलेस होगा. is there any लेकिन उर्दू से किसी अरबी से किसी ऐसी लैंग्वेज में ले जाएं जिसमें ये सब एक पे मैप हो जाए, लाइक इंग्लिश, that तो उसमें अनलेस यू डू दिस विद अ टी एच द, उसके बगैर ये चीज आप नहीं कर सकेंगे. सो या देयर आर सच प्रॉब्लम्स. सर So, but क्वेश्चन I था. think यस. scientific method is the greatest sort of invention humans have ever come up with. You know, the So that's not a Enlightenment script. and ये इसीलिए तो मैंने ये सारी गुफ्तगू आज की शुरू की है. built नस्तालीक इज नॉट अ modern स्क्रिप्ट, वो अभी हम बात करते हैं. civilizations and सो the tools द that we स्क्रिप्ट use. So इज द from लेवल that जिस जो खाली perspective, कैरेक्टर सेट दे रही होती है. ठीक है. understanding सो फारसी इज रिटन यूजिंग अरेबिक स्क्रिप्ट, उर्दू इज रिटन यूजिंग अरेबिक. सो बाय द वे नाम किसका दिया जाता है फिर? probably अगर everybody फारसी भी वो यूज करी, उर्दू भी यूज कर, वाई इज इट उर्दू स्क्रिप्ट, वाई इज इट अरेबिक स्क्रिप्ट? जो नॉर्मली पुराना होता है in the right या जिसके हाथ में ज्यादा पावर उस दिन होती है जिस दिन ये कैरेक्टर सेट का नाम डिसाइड हो रहा होता है यूनिकोड के कैरेक्टर पेज के ऊपर, तो उसका नाम लग जाता है उसके साथ. सो नाम इज रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट अ कैरेक्टर सेट. ठीक है. और बाय द वे अरेबिक स्क्रिप्ट के अंदर द कैरेक्टर्स ऑफ टे एंड जाल और ये सब शामिल है उसमें, वो सब उसके अंदर है. अच्छा, कन्वर्जन इज नोन एज ट्रांसलिटरेशन. इनके लिए हमारे पास कंप्यूटेशनली इनको स्टोर करने के लिए एवरी नॉन लैटिन स्क्रिप्ट की लैंग्वेजेस को हमारे पास यूनिकोड है. So Unicode, so you remember your ASCII was 7-bit character set with one more bit to add in the extended ASCII, जिससे वो border उस तरह की special shapes बनाने के लिए था. So 128 characters for the basic and 128 characters for the extended. ये total आपके पास थे, ये वो take one character. ये आपके पास सारे characters थे ASCII के अंदर. जब हम ASCII से आगे बढ़े तो we needed more space. वो स्पेस बन गई and we got a Unicode character set. Originally Unicode is not a character set. Unicode is just a theoretical level of defining characters of a language. The implementation of Unicode, ये वो सारे मसले हैं जो आपको पढ़ने हैं. The implementation of Unicode depends on the choice of character set जो कि foreign language के लिए कोई use कर रहा है. UTF-16, UTF-32 और UTF-8. ठीक है. अभी हम इसकी quickly बात करते हैं. अच्छा, एक सवाल जो स्टूडेंट्स के जहन में हमेशा शुरू में होता है, I'm giving you an Urdu file to do something on a neural network with it. And the first question that comes to mind is, by the way, Urdu is right to left. तो अब फाइल में किस तरह लिखा हुआ होगा? फाइल में उल्टा लिखा हुआ होगा? क्या आखिर से शुरू हो रही होगी? क्या लाइन बाय लाइन उलट रही होगी? At file level there is no difference. The first character जो उर्दू का है, अगर वो शुरू हो रहा है मैंने खाना खा लिया था, ये पहली मेरी फाइल का जुमला है, तो मा इज द फर्स्ट कैरेक्टर, ये इज द सेकंड कैरेक्टर, गुन्ना इज द थर्ड कैरेक्टर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ये इसी ऑर्डर में फाइल में पड़े हुए होंगे. चाहे ये चाइनीज है या जापानीज है, रिटन डायरेक्शन जो मर्जी है उसकी, वो उसकी रेंडरिंग है खाली, जिस तरह से मशीन आपको दिखा रही है, नॉट जिस ऑर्डर में स्टोर कर रही है. स्टोरेज उसी ऑर्डर में हो रही है जिस ऑर्डर के अंदर वो जबान जहां से शुरू हो रही है, चाहे वो राइट है या लेफ्ट है, इट डजंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. अच्छा, यूटीएफ, ये स्लाइड खुद से तफसील से पढ़ लीजिएगा. इसकी 3 फॉर्मेशन है. ये इसकी सबसे बड़ी फॉर्मेशन है जो ओरिजिनल फॉर्म है, UTF-32. इसके अंदर सारे के सारे कैरेक्टर्स 4 बाइट्स में इनकोड होते हैं, बिकॉज यूटीएफ इज ओरिजिनली 32-bit स्टैंडर्ड. ठीक है. अच्छा, देर इज अनदर फॉर्म ऑफ इट जो आप चूज कर सकते हैं अपनी फाइल को सेव करते हुए. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल सेव कर रहे हैं तो आप उसे कहें UTF-16 में सेव कर दो. इसका मतलब ये होगा कि वो आमतौर पर हर कैरेक्टर को 16-bit में सेव करेगा, एक्सेप्ट फॉर कैरेक्टर्स जो कि उस यूनिकोड पेज पर नहीं आ रहे. एक यूनिकोड पेज जो है वो 64K का होता है. 64K से आगे के जितने कैरेक्टर्स होंगे वो सारे वो 4 बाइट में रख देगा. तो इट्स अ कैरेक्टर सेट व्हिच सेव्स यू स्पेस. देयर इज इवन अ मोर स्पेस सेविंग वर्जन UTF-8 जो कि इंग्लिश के और लैटिन के कैरेक्टर्स को बाइट में रखता है और उसके अलावा बाकी सब चीजों को जो है वो 4 बाइट के अंदर रख देता है. अब अगर आप कोई ऐसी फाइल यूज कर रहे हैं जो मल्टीलिंगुअल कोड स्विच, बाय द वे हम मल्टीलिंगुअल को अपनी जबान में जब एक से ज्यादा जबानें लिखी हुई होती हैं तो उसे कोड स्विचिंग कहते हैं. तो कोड स्विच्ड फाइल को
अगर उसमें ढेर सारी अंग्रेजी के कैरेक्टर्स हैं तो इट्स बेटर यू सेव इट एज UTF-8, क्योंकि वो सारे अंग्रेजी वाले जो है वो सिंगल बाइट में स्टोर हो जाएंगे. बट इफ इट इज primarily non-Latin script जो उसमें यूज हुई हुई है, then you're better off with UTF-16, क्योंकि वो ज्यादातर चीजों को 2 बाइट में करेगा. And if everything goes, कुछ नहीं पता, तो then UTF-32 is also okay, but it wastes a lot of space. जी जी जी, बोले बोले, मुझे आवाज आ रही है. will be the ability to plan over multiple time horizons. Instead of just generate new text in a one shot, the model will be able to generate a sequence of actions over time. And I think that that's really the character of AI that we'll see in the next 5 years. Artificial capable AIs. AIs that can't just say things, they can also Yes. do things. What does that actually mean in practice? Just use your imagination. Tell me what my life will be like. Wonderful question. You have pointed out an amazing problem जो कि बड़े लंबे अरसे से लोगों को पेश आती रहती है. You have a file with Urdu in it. Microsoft Word की फाइल है, आपने उसके ऊपर जाके जल्दी जल्दी टाइप किया, कोई वर्ड स्कूल लिखा आपने और उसमें सर्च किया और वो दे ही नहीं रहा, और आपको नजर आ रहा है कि उसमें स्कूल लिखा हुआ है फाइल में. आप कह रही हैं ये पागल है, मेरा कंप्यूटर इसको उर्दू यूज ही नहीं करनी आती. So the problem is that different character sets, so within the Arabic script, different characters, so there are, for multiple languages there are characters which look the same but have a different code. So for example, जीम के multiple codes हैं. सिंधी के पास भी अपना जीम है, उर्दू के पास भी अपना जीम है, अरबिक के पास भी अपना जीम है. वो जीम के अलग अलग यूनिकोड कैरेक्टर्स हैं. इफ यू सर्च देम बेस्ड ऑन सिंपल स्ट्रिंग मैचेस, वो नहीं मैच होंगे. तो लिहाजा इसके जब आप उर्दू वगैरह, और क्योंकि हम ज़्यादा खालिस उर्दू नहीं इसमें करें, कभी आगे जाके करेंगे तो मैं आपको इसका भी सिखा दूंगा. देयर इज अ नॉर्मलाइजेशन पास दैट यू हैव टू टेक ऑन योर फाइल इन ऑर्डर टू एंश्योर कि पूरी की पूरी फाइल जो है वो यूनिफॉर्मिटी के साथ कैरेक्टर सेट्स को फॉलो कर रही है. दिस बिकम्स अ चैलेंज व्हेन यू आर डूइंग मैसिवली मल्टीलिंगुअल. तो उर्दू पंजाबी सिंधी मिक्स हुई हुई है, तो नाउ यू डोंट इवन नो. तब अगर किसी ने गलत टाइप कर दिया तो मसला हो सकता है. योर जीपीटी हैज वेरिंग सक्सेस विद इट, वो इतना सक्सेसफुल नहीं है. One of the biggest reasons for why it and the GPT-4 manages it will come in our discussion जैसे ही हम in tokenizations को implement करेंगे. It basically has a fallback. अगर उसको वो word नहीं मिलता अपनी vocabulary के अंदर, तो it has a fallback to go down to character level. So ये उसको character level पे जाकर prediction करना शुरू कर देता है, which reduces the prediction ability but still allows it to manage that word. ठीक है, ये हम discuss करेंगे जब हम BP आज पढ़ रहे होंगे. अच्छा जी, अब बात करते हैं स्टाइल की. लैंग्वेज हो गई, स्क्रिप्ट हो गई, स्टाइल. स्टाइल है सिंपली उस लैंग्वेज को रेंडर करने के डिफरेंट अंदाज. सो योर टाइम्स न्यू रोमन इज अ स्टाइल, योर मोनोटाइप कर्सिवा इज अ स्टाइल, योर कोरियर इज अ स्टाइल. ऑल ऑफ दीज आर स्टाइल्स ऑफ राइटिंग द सेम अल्फाबेट. सो फॉर एग्जांपल, मैं अगर ए को ऐसे लिख रहा हूं या ऐसे लिख रहा हूं या मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, ये different styles of writing the same हैं. Sometimes these styles are really really different from each other. For example, अगर आप Arabic script के styles के ऊपर आ जाएं, यहाँ पे आपको नस्तालीक जो पहले वाला है, नस्ख और तालीक से जो बना था, and then you have your नस्ख जिसमें आजकल आमतौर पर Arabic लिखी जाती है, then sulus and riqa and diwani and shikasta and kufi. This was one of the oldest styles of writing Arabic. और इसमें सीधी लाइनें इसलिए होती हैं कि उस जमाने का स्टाइल है जब पत्थरों से पत्थरों पर लिखा जाता था, तो गोल दायरा बनाना किसी हार्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए सीधी लाइनें ड्रॉ करना आसान होता है. एचिंग विद लेट्स से अ डैगर और अ शार्प ऑब्जेक्ट. सो दीज आर ऑल स्टाइल्स, दे हैव द सेम एनकोडिंग. इफ यू हैव अ फाइल ऑफ उर्दू इन नस्तालीक वर्सेस नस्ख, फाइल के अंदर कोई फर्क नहीं है, सेम कैरेक्टर्स पड़े हुए. इट्स जस्ट लाइक कि आप अपनी वर्ड की फाइल लें इंग्लिश की, अपने ऐसे को पूरा उठाकर आप एरियल में कन्वर्ट कर दें टाइम्स न्यू रोमन से. क्या कैरेक्टर सेट चेंज होगा? नहीं, कुछ भी नहीं बदला, सब कुछ वैसे ही है, खाली रेंडर होकर नजर आपको उस तरह से आ रहा है. ठीक है. सो मेक अ डिफरेंस बिटवीन द 3 लेवल्स, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड स्टाइल. इसमें यूजुअली जो रुकीज इन द डोमेन ऑफ एनएलपी हैं वो जरा गलती करते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं कि हो क्या रहा है, ये समझ नहीं आ रहा. सो नाउ यू नो देयर इज अ लैंग्वेज लेवल, देयर इज अ script level which changes the character set, and then there is a style level which has no bearing on the character set. So आप ये नहीं कह सकते उर्दू को नस्तालीक स्क्रिप्ट में लिखा जाता है, कि कह सकते हैं उर्दू को नस्तालीक स्टाइल में लिखा जाता है. And then the 3 things are technical terms that you need to understand. Okay, tokenization. We will be looking at these 4 tokenizations, although कि मैं आपको तफसील से 3 करवाऊंगा और चौथी बाय एसोसिएशन हो जाएगी. जो बाइट लेवल टोकनाइजेशन है वो एसेंशियली वही एल्गोरिथम्स यूज करेगी जो कैरेक्टर लेवल के हैं, सिर्फ वो अप्लाई बाइट पे होने लगेंगे. सो द एल्गोरिथम विल रिमेन द सेम. अच्छा, दूसरी बात,
जितने भी एल्गोरिदम्स मैं आपको इन चीजों के करवाऊंगा उसकी यूं समझ लें कि मैं आपको एक वर्जन करवा रहा हूँ. These algorithms are not set in stone. They have differences across implementations. इसको ओपन एआई इम्प्लीमेंट कर रहा है तो अपना कुछ ना कुछ उन्होंने बीच में दो तीन मसाले ऐड किए हुए होंगे. इसको गूगल कर रहा है तो उसने अपने दो तीन मसाले ऐड किए हुए होंगे. सो रिमेन ओपन टू दीज चेंजेस अक्रॉस देम कि जिस तरह से वो कर रहा है, लेकिन द बेसिक आइडिया ऑफ द एल्गोरिथम विल रिमेन द सेम. ओके, नाउ ये तो आपसे सवाल में पूछ चुका कि 2 और 4 के बीच में फर्क क्या है, कैरेक्टर लेवल और बाइट लेवल. अगला सवाल, एंड नाउ फोकस टू द मैथ्स. Which one would lead to a smaller vocabulary, 1 or 2? V किसमें छोटा होगा, 1 में कि 2 में in general? And then assuming we're dealing with decently large sized corpora. By the way, ये भी टर्म मैं एक्सप्लेन कर दूं. हमारी जबान में, एनएलपी की जबान में डेटा सेट के लिए टर्म कॉर्पस यूज होती है. कॉर्पस का मतलब होता है बॉडी ऑफ टेक्स्ट, ठीक है, जिसकी जमा कॉर्पोरा होता है, कॉर्पसेस नहीं होता. So when you go to a conference and say corpuses, people immediately know this is your first paper. Okay, so now we have a decently sized large corpus, and we want to know कि मेरा अगर कैरेक्टर लेवल है वर्सेस के वर्ड लेवल है तो किस केस में मेरी vocabulary छोटी होगी और क्यों. Raise hands. On the development of this the trajectory Sir. of this development. But the capabilities that will arise will mean, for example, potentially transforming Exactly. Why? human health. Because there is just so many characters that we have. The building blocks come from a smaller set. ठीक है, तो इसका मतलब है vocabulary छोटी होगी. There is simply less bushiness in this tree. There is just simply less options in this. Okay? Does that mean it will always be better at predicting stuff? Why not? Vocabulary छोटी है, काउंट्स बड़े हैं. अब वो सिंगल काउंट्स बहुत कम है, बहुत कम ऐसे कैरेक्टर होंगे जो आपको पूरी एक बड़ी कॉर्पस में सिर्फ कुछ 10 दफा मिले होंगे. हर चीज ही हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स या मिलियंस में होगी. Then why would the prediction, why is it, at least why does it appeal to our intuition that the prediction ability is going to go low? Sorry? Yeah, but you're assuming that the window is very short. If you're predicting based on 1 or 2 characters, then the context is gone. Then you just have the character context, which is only good enough for forming words, not going from word to word. So if you want to use a character level encoding and still predict the next word, you need to bring in enough characters into the context window which give it enough predictive power to predict the next word. अगर आप 2 characters की बेस पे कर रहे हैं जो एक word भी पूरा नहीं देख रहा, तो वो ये नहीं predict कर सकता कि अगला word कौन सा आना. हाँ, उसके लिए आपको कम से कम इतने characters in the past देखने पड़ेंगे जो 1-2 words जितने होते हैं. ठीक, make sense? All right. So word level tokenization, simplest of ideas in its very basic. It simply means white space पकड़ो और उसके ऊपर उसको टोकनाइज कर दो. So ये टोकनाइजेशन करने के लिए आमतौर पे आपको कोड भी लिखने की जरूरत नहीं होती. आप अपनी फाइल में जाते हैं और आप रिप्लेस ऑल स्पेस कैरेक्टर्स विद लेट्स से एंटर कर देते हैं और आपका हर चीज जो है वो न्यू लाइन के ऊपर चली जाती है और आपने टोकनाइज कर लिया एट अ बेसिक लेवल. ऑब्वियसली पंक्चुएशंस आर स्टिल लेफ्ट, उसका कोई हल नहीं निकला. ऑब्वियसली जो आपके अपॉस्ट्रोफीज हैं दे आर स्टिल लेफ्ट, कॉमास आर स्टिल लेफ्ट, वो सब कुछ अभी बीच में पड़ा हुआ है, वो नहीं हुआ, लेकिन एक बेसिक आपकी टोकनाइजेशन होगी. इसको इसी लेवल पर रखते हुए let's talk a little bit about this particular scheme. This, by the way, has remained the dominant scheme of tokenization for the longest period of NLP history. So हम 60s में, 70s में, 80s में, even early 2000s में, up until 2010, primarily यही कर रहे थे. जितने मैंने अपने बैचलर्स के और मास्टर्स के जमाने में टोकनाइजर लिखे थे वो सारे वर्ड लेवल टोकनाइजर थे. वो मसले भी सॉल्व करते थे उसके, तो वर्ड लेवल पर ही सॉल्व करते थे. तो उस वक्त तक ये सारी चीजें उस तरह से टोकनाइज हो रही थी. इसमें क्या मसाइल नजर आ रहे हैं? रेज हैंड्स. लेट मी सी कि मैंने अगली 2 स्लाइड्स में डाले हुए उनमें से कितने आप खुद ही मुझे बता देंगे. वर्ड लेवल टोकनाइजेशन के कुछ मसले मसाइल बताएं मुझे. डू यू सी देयर इज एनी प्रॉब्लम? Raise hands. Think carefully.
थिंक अबाउट योर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिसमें आपने अब एंटर के ऊपर जो है वो स्पेस के ऊपर एंटर कर दिया एंड डोंट टेल मी अबाउट पंक्चुएशंस, वी ऑलरेडी नो दैट. पंक्चुएशन तो हमें खुद ही मान लिया ना कि मसला है, वो भी सॉल्व नहीं हुआ है. But there will be other problems. Over a 30 to 50 year time horizon, it's very difficult to Okay. speculate. I mean, at the very least, we can say that 2 years ago, we thought that these models. Excellent. Not all languages have a necessity to add a white space between their words. तो लिहाजा अगर वर्ड डिफाइन हो रहा है एक यूनिक मीनिंगफुल एंटिटी के तौर पर, तो जरूरी नहीं है दो वर्ड्स के बीच में वाइट स्पेसेस हो. जापानीज डजंट हैव इट, चाइनीज डजंट हैव, सो मेनी जापानीज लैंग्वेजेस do not have it, Chinese कई flavors do not have it, and similarly Urdu does not need to have it. वो मैं आपको आगे जाके इसकी एग्जांपल दे दूंगा. Okay. What else? Are things that these models do incredibly well. And so I think for a period of time, AI's augmented. Yes, so same stem को अलग कर देगा. Same stem से हमारा मतलब है कि ऐसे words जो कि अपना लेमा शेयर कर रहे हैं. ठीक है, so basically boy boys, play plays played, ये सब के सब जो हैं अलग हो जाएंगे. We know this problem, लेकिन हमने इस पे तो डिसाइड ही कर लिया ना कि हम surface form पे कर रहे हैं. So we're okay with that, but you're absolutely right कि it would have been better अगर हम इनको इकट्ठा कर लेते, prediction के अंदर इससे help हो जाती. Yeah, you're absolutely right, spot on. What else? As a species, what is and what isn't acceptable over a 30-year period, and that means politics and governance. With regard to jobs, Yes. I agree that Shabash. So white space usage could be problematic. White space usage could also be really interesting in case of coding. but we have to look more carefully at time and space. Remember, we're dealing with machines who will also be writing code for us. Is the So अगर कोई चीज white space को simply remove कर रही है tokenization में, तो वो coding के अंदर वो सारी information of indentation को remove कर रही है. 4 टैब लगे हुए थे, उसने चारों टैब खत्म कर दिया. उसे कुछ नहीं पता क्या चीज किसमें नेस्ट हो रही है, उसे काउंटिंग करनी पड़ेगी सारी जाकर. उसने वो इन्फॉर्मेशन लूज कर दी इंडेंटेशन की. ठीक है, अच्छा चले. और कोई एक मैं चीज का और इंतजार कर रहा हूँ आप में से, अगर कोई वहां तक पहुंच सके. है तो जरा दूर की, लेकिन है बड़े मजे की. जी, unemployment, this could cause huge social and political disruptions. बिल्कुल सही. vocabulary साइज ह्यूज हो जाएगा, बिकॉज आप हर चीज को जो कि जुड़ा हुआ वर्ड होता है उसकी सरफेस फॉर्म देख रहे हैं. दैट वुड मीन कि इंग्लिश मे बी विल हैव मिलियंस ऑफ वर्ड्स in its vocabulary, including typos. Perfectly fine. और कुछ. Jobs in California or Texas, What happens whereas when you come across a word lose that is not part of your training data? basis. So you need a lot more आप सब ने ML पढ़ी हुई है. आप में से अक्सर ने ML मुझसे पढ़ी हुई है. and whatever in California. जब मैंने पढ़ाई थी तो अगर आपको याद हो, मैंने ये वाली गुफ्तगू की थी बेज थ्योरम के नाइव बेज की डिस्कशन में. रिमेंबर? अच्छा, वहां मैंने एक चीज कही थी. वहां मैंने आज के दिन का जिक्र किया था. बेसिकली वहां मैंने ये कहा था, जब भी कभी आप लैंग्वेज की बेस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो आउट ऑफ वोकैबुलरी वर्ड को बड़ी आसानी से हैंडल कर सकते हैं बाय इग्नोरिंग इट. लेकिन ये तब तक चलेगा जब तक क्लासिफिकेशन हो रही है. तब नहीं चलेगा जब लैंग्वेज मॉडलिंग हो रही है. आज वो दिन है जब लैंग्वेज मॉडलिंग हो रही है. सो अब ये नहीं चल सकता. अब आप अननोन वर्ड को इग्नोर नहीं कर सकते. अब उसे मॉडल करना पड़ेगा. ठीक है, अब जरा इस गुफ्तगू को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इससे टोकनाइजेशन का क्या ताल्लुक है फिर. ओके, सो लार्ज वोकैबुलरी विद मेनी टोकन्स विद पोटेंशियली ओवरलैपिंग सबस्ट्रिंग्स. यानी आपको बड़ा दुख होता है जब आपके पास एक ह्यूज वोकैबुलरी है और आप जाकर उसे एनालिसिस करते हैं और आपको नजर आता है इसमें तो इतने ढेर सारे ओवरलैप्स हैं एट द सबस्ट्रिंग लेवल. तो दा और देन में ओवरलैप है, बॉय बॉय बॉयज में तो ऑब्वियसली है, प्ले प्लेस प्लेड में ऑब्वियसली है, जो एक तो नेचुरल है, और एक ऐसे ओवरलैप्स भी हैं जो कि वर्ड लेवल पर है अनरिलेटेड वर्ड्स के बीच में. बट वी आर नॉट एक्सप्लॉइटिंग दैट. ओके, व्हाट डज दिस पार्ट ऑफ द डिस्कशन ब्रिंग टू योर माइंड? जैसे ही मैंने ये कहना शुरू किया है अनरिलेटेड वर्ड्स में सबस्ट्रिंग्स कॉमन है, कौन सा सब्जेक्ट जहन में आ रहा है? कंप्रेशन. ऐसी बातें वो लोग करते हैं जिन्होंने कंप्रेशन करनी होती है. कंप्रेशन वाले लोग ये देख रहे होते हैं मेरे पूरे डेटा में रिगार्डलेस ऑफ कौन सा वर्ड है, ये सबस्ट्रिंग्स कॉमन है. हाउ अबाउट आई एनकोड देम यूजिंग दिस वेरी स्मॉल कोड, बिकॉज दिस वाज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली कॉमन सबस्ट्रिंग, द लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग जो पूरे डेटा में थी, और ये सारे के सारा डेटा जो है वो इस तरह रिप्रेजेंट हो जाएगा. रिमेंबर, आप हफमैन कोडिंग में भी यही करते हैं, आप इससे सोफिस्टिकेटेड स्कीम्स में भी यही करते हैं. ओके, ये बात क्यों आई कंप्रेशन की? बिकॉज सम ऑफ द बेस्ट मॉडल्स फॉर टोकनाइजेशन हैव कम आउट ऑफ कंप्रेशन. वहां से आए, पहली दफा कंप्रेशन के पेपर में आए, और उसके बाद हमने उसको टोकनाइजेशन में शामिल कर लिया. ओके, अच्छा चलें इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं. There is a property of natural languages
that the words in their vocabularies are always distributed in a very particular form of distribution. We call it the Zipf distribution. The Zipf distribution simply means, यानी इसकी तफसीलात तो लिखी हुई हैं, it's a specific form of power law. It simply means, अगर मैं इसका log plot बनाऊं, so you have the words of the language and you have their frequency. There will be words which are very frequent, but there will be few such words which will be very, very frequent. But then this is going to drop really quickly. And finally, there'll be many, 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 many words which are infrequent, which are actually very rare. In fact, जब आप ये किसी भी language के लिए draw करते हैं, you find, for example, English में यहाँ होता है the, ठीक है, उसके बाद is होगा, उसके बाद and होगा. I'll also show you the list English के लिए जो है. ये सबसे frequent words हैं. Zipf also dictates कि इनके आपस में क्या relation होगा. So the first one is twice as frequent as the second one, and the first one is 3 times as frequent as the third one, and so on and so forth. That's also a power law decline. इसकी थोड़ी adjustment करनी पड़ती है. खाली Zipf नहीं, Zipf के साथ एक बंदा और था. उन दोनों के नाम मिला के there is another distribution which is a better fit to languages. But yeah, those are details. You don't need them right now. But the problem is, look at this. You're representing every word as a token, and the majority of the words occur only once. Do you see the irony and the statistical problem of it? The counts of the majority of the words of the language will be close to 1. And you have a token for them. You are gearing yourself up for failure, because when you count them and you do any prediction based on counting, the counts will be 1. You can't do any statistics. It's just like saying, मैंने coin एक दफा toss किया है, head आया है, coin fair था या नहीं था. It's simply not enough experiments, not enough trials जिसकी base के ऊपर आप इसके ऊपर कोई prediction कर सकें. The same problem is here. For the majority of words, the majority of tokens that you have do not have any predictive power. However, when we look at these tokens, we find that amongst many of them there are string overlaps. There are substrings जो कि कहीं ना कहीं common हो जाती हैं. ठीक है, the then these में भी common आ रही है, and thesaurus में भी वही string है. So कितने सारे words हैं जिसके बीच में वही strings हैं, right? Okay. So now you know the reasoning why the word level tokenization may reach problems जो कि बाद में आपके हाथ में ही ना रहे, उनका कोई solution ही नहीं. Language has to have those things. Okay. So we call it the long growing tail of languages. It is not just long. So if you can think of this as the head of the dragon, and you can think of this as the tail of the dragon. And the tail of the dragon is growing every day by hundreds of words, sometimes thousands of words. Words जो कभी vocabulary में नहीं थे और अब vocabulary में शामिल होते चले गए, vocabulary में आते चले गए. इसमें भी दो तरह की increase होती है, वो खैर इस वाली ग्राफ में नजर नहीं आती. इसमें surface forms की increase नजर आ जाती है. There is also a meaning increase. Apple पहले सिर्फ खाया जाता था, अब उसके ऊपर वीडियो देखी जाती है. So like the meaning change also is another phenomena जो हम semantics वाले हिस्से में जब transformers करेंगे तब देखेंगे. लेकिन this is just the actual growing of the tail. Okay, so that means कि नहीं tokenization at the word level is not a good idea. Do something better. Okay. दूसरा problem, poor handling of out of vocabulary words, जिसकी बात अभी हमने की थी. हम out of vocabulary word को आज से चंद साल पहले तक कैसे डील करते रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ. फर्ज करें चैट जीपीटी को एक नया वर्ड मिला. चैट जीपीटी नहीं, चले किसी पुराने मॉडल का सोच लें, जीपीटी 1 का सोच लें. एक नया वर्ड मिला जो उसको नहीं पता था ये क्या है. ओके, द नाइव वे ऑफ डूइंग दैट, जो हमने कहा हमने नहीं करना, वो ये इग्नोर कर दो. नाउ वी कैन शो दैट दैट डजंट वर्क. Ignoring these unknown words because the unknown words are simply too many, ignoring them is not a good choice, does not lead to good prediction. A slightly better method is to mark it as an unknown token, give it a separate new token, then do some interesting statistics with it. Find out the probability of encountering an unknown word. You can do that by using a train and test corpus. You can figure out कि मैं कितनी चीजें मुझे ट्रेन में मिली थी और जब मैं टेस्ट को देख रहा हूँ तो उनमें से कितनी चीजें ऐसी थी जो मेरे ट्रेन में नहीं थी. इससे आप एस्टिमेट कर सकते हैं the probability of meeting an unknown word जिस वक्त आप टेस्ट डेटा से डील कर रहे हैं. And then based on that,
normalize it to the number of possible words जो आपको मुझे मेरे टेस्ट डेटा में मिलेंगे और इस किस्म का कुछ मैथ करें. सो लास्ट ईयर जब हमने पढ़ाया था जनरेटिव एआई तो हमें कुछ 2-3 हफ्ते लगे थे वो सारे मेथड पढ़ने में जो उस तरीके से डील करते थे. दे आर नो लॉन्गर रेलिवेंट. बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं रहे. पुरानी चीजें अभी यूज कर रही हैं. अब नई चीजों में वो यूज नहीं होते. So this was the second method. The third and the better method is ask yourself the question, क्या मैंने इस वर्ड की रूट फॉर्म देखी है या नहीं देखी है. मैंने प्लेड तो कभी नहीं देखा. मैंने एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं देखा. मैंने डिसएस्टेब्लिशमेंट तो नहीं देखा. Okay, what's the longest word in natural language of English? By natural I mean not the technical English of like don't give me per hydrocyclopentane, like give me an actual word of English, the longest word of English. You both said there needs to be regulation. Before we get It is claimed that it is anti-disestablishmentarianism. So that's the longest word. Not used a lot, but anti-disestablishmentarianism. So let's assume my model has never seen this word, but it has seen establish. Now this should help with the predictive power, right? So there should be a way of stripping away the affixes, meant, un, this, anti, and just leaving ourselves with the center of the word. अच्छा, ये तो खुद बड़ा मुश्किल काम लग रहा है. इसको तो अपनी मशीन लर्निंग चाहिए जो ये करके दे. Exactly. इस चीज को हम मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस कहा करते थे, कहते हैं, अभी भी करते हैं. मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस रिक्वायर्स इट्स ओन मशीन लर्निंग. अच्छा खासा मुश्किल काम है ये सब कुछ करना. इसकी एक थोड़ी सी सिंपलर फॉर्म भी है, एस्टिमेटेड फॉर्म भी है, जिसको हम स्टेमिंग कहते हैं. स्टेमिंग अभी भी बहुत ज्यादा यूज होती है. स्टेमिंग का मतलब होता है कि एक वर्ड के ऊपर से वो चीजें उतार दो जो उतर सकती हैं. तो एस्टेब्लिशमेंट पे से मेंट उतार दो. सो देयर इज अ लिस्ट ऑफ स्टेम्स. उनको जाके आप हर वर्ड से उतारना शुरू कर देते हैं और जो कुछ बचता चला जाता है वो पीछे आपके पास रह जाता है. जो वर्ड होता है इसके अपने मसले मसाइल भी हैं. बस दफा ऐसी चीज भी उतर जाती है जो वर्ड का हिस्सा होती है. तो द स्टेमिंग हैज इट्स ओन प्रॉब्लम्स. पोर्टर स्टेमर वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टेमर्स जो अभी भी आपके बहुत से सॉफ्टवेयर के अंदर यूज होता है जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं. ओके, सो ये तो हो गया इसको काम को करने का सही तरीका. मैं क्वेश्चन ले लूं फिर मैं आपको बताता हूँ अब हम क्या करेंगे. जी, ठीक कर लेता है. यस, yes, yes, we will see how it does that. That's some of those typos are actually not even typos. Sometimes you incorrectly write a correct spelling but a different word that you did not want to write, और वो उसको भी ठीक कर लेता है. So spell correction दो तरह की होती है. एक होती है उस वर्ड को ठीक करना जिस जो डिक्शनरी में है ही नहीं. तो आपने देन के THNE लिख दिया, उसको पता लग गया कि डिक्शनरी में नहीं है, ये टाइपो है. लेकिन अगर आपने देन की जगह आई डोंट नो दे लिख दिया and it figured out कि आपने गलती से लिख दिया, that's really awesome. So this is called real word typo detection. ये उसके अंदर है और क्यों है ये हम देख लेंगे क्यों है. जी, I think that's the right trade-off. This is a moment of caution. Things are accelerating extremely quickly, and we can't yet do yes, the yes, balance between the बिल्कुल, harms and benefits perfectly well until we see how this wave unfolds yes, a little bit. So I like the will be a fact problem. that our Huge problem. collective Yes, reflection will be a AI problem. जब वो अगर स्ट्रिप ऑफ करके फेंक दिए ना वो सारे, फिर तो काम खराब हो गया. फिर तो एक नेगेटिव ने भी काम खराब कर देना. फिर तो आपने रिव्यू को कहना आपके हक में था जबकि उसने नॉट करके कहा था. ठीक है, तो लिहाजा ये मेथड की अपनी लिमिटेशंस थी. जिन जिन चीजों पे मैं बाय द वे जल्दी जल्दी गुजर रहा हूँ ना, ये समझ लें कि ये डेकेड्स का काम था, पेपर्स आफ्टर पेपर्स आफ्टर पेपर. लेकिन ये चीजें अब अपने से बहुत बेहतर चीज से रिप्लेस हो गई. वो बेहतर चीज क्या है? वो बेहतर चीज ये है, have we seen at least some constituents of this word? Okay, what does that mean? Become language agnostic. Go into English, find out all the common substrings, and find out the most common substring in the entire corpus and add it to your vocabulary. Now go to the second most common substring, add it to your vocabulary. Keep doing this. Keep doing this. And you have a new form of a vocabulary. Now, initially it's mind-boggling. ये किस किस्म की बेकार vocabulary है जो द में से THE को भी निकाल के ले गई है, then में से भी ले गई है और thesaurus में से भी ले गई है. और उन सब कुछ को एक ही vocabulary item समझ रही है. But we'll see that even this vocabulary, when it goes through enough training, it becomes a really, really powerful thing. ठीक है, ये वो डायरेक्शन है जिसकी तरफ हमारे सारे मॉडर्न मेथड्स अब जाएंगे. और ये मेथड लैंग्वेज एग्नोस्टिक होकर ये काम करेंगे, विच इज ऑल्सो अ गुड थिंग फॉर मल्टीलिंगुअलिटी. ठीक है, इस पे अभी आते हैं. अब बस इसको यही बात को मैं छोड़ के आगे बढ़ रहा हूँ. ओके, या सो सब वर्ड टोकनाइजेशन, ये उसी की बात हो रही है. वोकैबुलरी ग्रोथ नीड्स न्यू वर्ड वेरिएशन, या वी ऑलरेडी डिस्कस दैट.
और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जहाँ पे अपोस्ट्रोफीज वगैरह बीच में लगे हुए होते हैं, ये भी हमारे लिए मसला बनते हैं, कंपाउंड्स हमारे लिए मसला बनते हैं। चले मैं आपको दो चीजों का क्विकली जिक्र कर देता हूँ। बाय द वे ये जो स्लाइड्स जहाँ खत्म होगी ना, उसके आखिर में मैंने कोई 50 के करीब ऑप्शनल स्लाइड्स डाली हुई हैं। दे आर नॉट पार्ट ऑफ योर कोर्स। फॉर दोज ऑफ यू हु वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि जितनी बातें की हैं, डज इट हैव एनी लिंग्विस्टिक बेसिस टू इट? लाइक आर वी जस्ट creating these things out of thin air या इसकी कोई सेंस भी है? So I've added around कुछ 40-50 slides on the linguistics of it कि word बनते कैसे हैं, words से words कैसे बनते हैं, processes क्या होते हैं, so on. Those of you who are interested should read that. If you're someone who is interested in serious research in LLMs in your life, you should have that linguistic background. लेकिन मैं उस कोर्स का हिस्सा उसको नहीं बना रहा। अब CS वालों को कभी कभी ना ये बोरिंग भी लगती हैं चीजें, तो मैं इसलिए नहीं कि आपको बोरिंग लग रही है, इसलिए कि वो थोड़ी सी कम रेलिवेंट है, तो मैं उसको अलग से नोट्स करके डाल दिया। Okay, what was I saying? I was saying that, for example, there is a word like blackboard. Two words or one word? Ahista, ahista. Two words or one word? Whereas it is changing the meaning of ahista. I do also agree that it's probably time Okay. for us to explicitly declare that we should not allow these tools to be used for electioneering. Fancy schmancy. We cannot trust them yet. We cannot trust them to be stable and reliable. We cannot They are allow them words to be using them for counterfeit जिसको हम उर्दू में कलमा और मोहमिल कहते हैं। एक वर्ड जिसका मानी है दूसरे का नहीं है, ठीक है? चाय वाय, खाना वाना। अब ये तमाम केसेस इंटरेस्टिंग यूज केस होते हैं जब आप किसी वर्ड टोकनाइजर को यूज कर रहे होते हैं कि भाई वर्ड टोकनाइजर अब करना क्या है इन सब कुछ का, ठीक है? ये भी वो चीजें हैं जो हमारे सब वर्ड टोकनाइजर सीमलेसली हैंडल कर लेते हैं इन तमाम मसाइल को। इसी तरह देयर इज आल्सो, सो इन फिनोमेना को कंपाउंडिंग और रीडुप्लीकेशन कहते हैं, जो मैंने अभी आपके सामने बोले थे ना। कंपाउंडिंग और रीडुप्लीकेशन के फिनोमेना थे। कंपाउंडिंग था ब्लैक बोर्ड, रीडुप्लीकेशन था जहाँ पे वर्ड अपने आप को रिपीट कर रहा है। इसी तरह से देयर इज क्लिटिसाइजेशन, क्लिटिक्स। तो क्लिटिक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कैन नॉट को कैंट, आई हैव को आईव, यू हैव को यूव। तो ये जो अपोस्ट्रोफी डाल की चीजें बन रही होती हैं, इसको हम क्लिटिक्स कहते हैं। क्लिटिक्स भी डील करना पुराने टोकनाइजर्स के लिए अच्छा खासा मुश्किल काम था, बट सब वर्ड टोकनाइजर्स डील विद दैट एज वेल। तो ये सारे के सारे वो मसले जो कल तक हमारे लिए नामुमकिन हद तक मुश्किल हो जाते थे, मॉडर्न टोकनाइजर्स डील विद दीज प्रॉब्लम्स इन अ रियली नाइस वे। फॉर एग्जांपल नो स्पेसेस का प्रॉब्लम, मैंने आपको कहा था उर्दू में ये स्पेसेस मस्ट नहीं है। आई हैव रिटन दिस वर्स इन फ्रंट ऑफ यू, जो मैं सरबा सजदा हुआ कभी तो जमी से आने लगी सदा। इसके अंदर आई हैव मार्क्ड सम कैरेक्टर्स एज रेड एंड सम एज ब्लू। The ones which are red need a space. The ones which are blue don't need a space. Now figure out why. वाव और मीम जोड़ दिए जाएं तो भी वाव और मीम रहते हैं और अपनी शक्ल नहीं बदलते, जुड़ते नहीं हैं। So technically, these characters do not form complex ligatures when they come in contact with each other. They don't have different shapes for occurring in different parts of the word. So for example, bay can occur in 3 different shapes. So bay could be the base form, it could be the word initial form, it could be the word medial form. वर्ड के दरमियान, वर्ड के शुरू में, वर्ड के आखिर में, या इंडिपेंडेंट। कुछ कैरेक्टर इनमें से ऐसे हैं जो ये चीज नहीं करते। तो वाव और मीम नहीं करेगा, यहाँ मैं लिखना भूल गया, रे और बे नहीं करेगा, हे और ये कर लेगा। सो ये दोनों के दोनों आपस में कंबाइन होके कम्प्लेक्स शेप बन जाएंगे। दे नीड अ स्पेस। सो इन उर्दू समटाइम्स यू नीड अ स्पेस, समटाइम्स यू डोंट नीड अ स्पेस। द ओल्ड राइटर्स उर्दू के इस बात का ख्याल नहीं रखते थे कि हमेशा स्पेस लगानी है, जहां जरूरत होती थी लगाते थे, जहां नहीं होती थी एक एक्स्ट्रा बटन आपने एक की प्रेस करनी है। व्हाई वुड दे डू दैट? समवन who's basically typing hundreds of words per minute or something, उसको कोई जरूरत नहीं पड़ी अपने फालतू उंगलियां जाया करने की स्पेसेस लगाने के लिए जहां जरूरत नहीं है। और ये हमें ओल्ड उर्दू का जितना भी रिटन टेक्स्ट हमें मिलता है शुरू के वक्त का, जब से डिजिटाइज होना शुरू हुई थी, उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये मसला खाली दूर इसमें चाइनीज पे जाने की जरूरत नहीं है, अपने में भी आ जाता है मसला। इसको सॉल्व करने के लिए देयर इज एन एल्गोरिथम दैट यू शुड नो। अब हम उसे बहुत ज्यादा यूज नहीं करते। इट्स नोन एज द मैक्स मैच एल्गोरिथम। So the max match algorithm is essentially just a dictionary matching algorithm जो कि prefixes ढूंढता है। तो अगर ये वर्ड आपस में जुड़े हुए हों और कोई स्पेसेस ना हो इनके बीच में, तो ये शुरू से शुरू करेगा और वो लॉन्गेस्ट वर्ड ढूंढेगा जो डिक्शनरी में मिल जाए, और उसको उठाकर एक आइटम बना देगा और उसको टोकनाइज कर देगा। यू डोंट नीड टू नो दैट इन लॉट ऑफ डिटेल, आई हैव जस्ट एडेड इट एज अ लेगेसी कि आपको पता हो कल को टोकनाइजेशन में मैक्स मैच का जिक्र आए तो यू वुड नो कि हाँ, इससे बीपीई से पहले हम मैक्स मैच यूज किया करते थे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। Okay.
All right. Are the, The second way of tokenizing is character level tokenization. So you just go down to the character level. Every character is a different token. So your hello becomes this. This is the biggest Now the benefit is that it completely avoids OOVs. humankind At versus character level, there are hardly any OOVs. of the अगर आपकी decent corpus थी आपने सारे characters देखे हुए हैं. So there is no out of vocabulary character unless you have brought a character from a different language या कोई emoji लगा दिया कुछ और कर दिया otherwise कोई character आपको नया नहीं मिलेगा. and So we are in an एक तो ये हो गया मसला कि इसने ये problem solve कर दिया. it's almost impossible to लेकिन इसके contain मसले हैं. alien अब intelligence. sequences There is inference और training के लिए आपको बहुत लंबे करने पड़ जाते हैं. terms of really क्योंकि अब enabling छोटे सीक्वेंसेस से प्रिडिक्शन नहीं हो सकती. पहले एक टोकन से दो टोकन से प्रिडिक्शन हो रही थी. अब आपको कम से कम सेवरल टोकन्स. रिमेंबर एवरीथिंग spaceships that you are tokenizing will have its own embeddings. तो लिहाजा अब चलो यूं समझाऊंगा तो ज्यादा इस बात का असर होगा. मैं ये कहता हूं मेरे ओके इट विल कम बैक टू मी. लेट्स कीप मूविंग ऑन. So yeah, okay. So let's move on to the next one. Subword tokenization. ये वो जी. Sorry. How do you prevent something more Hmm. intelligent than you from Right. from developing the agency it has? I'm not saying it's Yeah. impossible. I'm just saying it's very Yes, difficult. वो नहीं मिलेंगे. I वो think अननोन वर्ड बन जाएंगे और उनको किसी तरह से डील करना पड़ेगा. to kind बिल्कुल. of think ये in वही वो terms प्रॉब्लम of वापस आ जाएगा इसके kind अंदर. of rigid Okay, regulation. this is the You state of shouldn't the do art. this, you shouldn't do that. These are the tokenization. These families of tokenization methods are the ones that we use now. So your GPT-4 uses that. Your Llama uses these. Your जितने आपके modern models हैं वो सारे जो हैं वो subword tokenization use करते हैं. Subword tokenization के अंदर मैंने आपको primarily तीन तरीके करवाने हैं डिटेल में. तीन algorithms करवाने हैं. The BPE, the byte pair encoding, the word piece encoding. So byte pair encoding जो है वो GPT family यूज करती है. Although बदलता जा रहा है ये भी. BERT यूज करता था word piece और T5 यूज करता था sentence piece. लेकिन within that it used to use unigram tokenization. So I'm not going to teach you sentence piece, which is like one line to explain what sentence piece is. I'm going to teach you unigram tokenization, which is essentially the scheme inside the sentence piece tokenization. So ये तीन वो हैं जो हमने पूरी तफसील से पढ़ने के algorithms हैं क्या. और again, as I said, one flavor of it. ये खुद भी मैं आपको दिखाऊंगा, ये चलाकर भी दिखाऊंगा कि across GPTs from GPT-2 to GPT-4 ये बदलते जा रहे हैं. और इसके साथ जो impact है, जो इसकी outcomes है, वो भी change होती जा रहे हैं. Okay, and then finally we have the byte level tokenization. और इसकी हम थोड़ी सी डिस्कशन पहले कर चुके हैं. इसके लिए इमोजीज भी हैंडल करना कोई मसला नहीं. ये तो बाइट लेवल है. बाइट लेवल पे डिवर्सिटी है ही सिर्फ एक बाइट में जितनी डिवर्सिटी हो सकती है, which is 256. तो इसको अननोन अब कुछ नहीं मिलने लगा. इसको हर चीज नोन मिलेगी. लेकिन नाउ टू प्रिडिक्ट समथिंग इट नीड्स वे मोर टोकन्स. ठीक है. सो अब ये वहां पर जाके इसको मसला आता है. इंटरेस्टिंगली योर जीपीटी फैमिली uses BPE, byte pair encoding, not at character level, which by the way should have been the case. Usually byte pair encoding character level पे apply होती है. GPTs use it at the byte level. So it uses a byte level BPE. और ये हम आगे जाके discuss करेंगे. Okay, let's look at an example from your book. So we have this sentence, have the musical bards who preceded. तो ये बीच में एक special character लगा हुआ है. Word tokens इसके कुछ इस किस्म के होंगे, have the this symbol bards who preceded. Subword tokens अगर हों तो एक possibility ऐसी है, have the this bard अलग हो गया, ऐसा अलग हो गया, who precede अलग हो गया, ed अलग हो गया. It's not necessary कि हमेशा इतने elegant होंगे. Mostly ये इतने elegant होंगे भी नहीं. लेकिन इस किस्म से breaking हो रही होगी. Character level, have the bards, सब एक एक character अलग हो गया, लेकिन ये पूरी चीज one character बन गया. This is a Unicode character. A 4-byte Unicode character. So assuming UTF-8 जो कि लैटिन को रखेगी 1 बाइट के अंदर और नॉन लैटिन को रखेगी 4 बाइट के अंदर. जब मैं इसको बाइट लेवल पर देखूंगा तो मुझे ये नजर आएगा HAVE स्पेस THE स्पेस और इसको इसने 4 बाइट के अंदर रखा. So therefore this is the difference between your byte level tokenization and your character level tokenization. The two are very different. Obviously, when you're dealing with massive multilinguality, and multilinguality also means things like emojis and other things, so फिर your byte level encodings become very relevant. Okay? Okay. Let's begin. Let's begin with the first one. Byte pair encoding. खुशखबरी क्या है? अगर ये समझ में आ गई और ये बड़ी आसान है by the way.
ये समझ में आ गई तो जो इससे अगली वाली है ना वो बस एक कदम दूर है, उसका सिर्फ एक स्कोरिंग मैकेनिज्म डिफरेंट है एंड देन एवरीथिंग एल्स इज ऑलमोस्ट द सेम। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। इसके लिए जो मैंने स्लाइड्स ली हैं वो प्राइमरीली हगिंग फेस का एक कोर्स है ऑनलाइन, उसके मैंने लिंक्स आपको दे दिए हैं। उस कोर्स की जो विजुअल्स हैं दे आर रियली नाइस, सो मोस्ट ऑफ द बुक्स एंड द प्लेसेस उसके ऊपर इसके विजुअल इतने ज्यादा इंट्यूटिव नहीं है कि फौरन नजर आ रहा हो, लाइक इट टेक्स यू 5 मिनट्स टू गेट देयर कि अच्छा अच्छा ये इसने ये कंबाइन किया। द विजुअल्स आर रियली गुड, सो आई जस्ट stolen them with reference, so you can also go to the original video and watch it, but I've everything that I needed in the slides as well. Okay, here's the algorithm. You अच्छा अब दो इस एल्गोरिथम के दो हिस्से होंगे, एक वो है जो कि ट्रेनिंग में है। अच्छा ओके, ये मैंने बात नहीं की। Your word level tokenization usually is rule based, so you define these rules. स्पेस पे टोकन कर दो, अपॉस्ट्रोफी को इस तरह डील करना है, कॉमा को इस तरह डील करना है, एक्सक्लेमेशन मार्क को इस तरह डील करना है, इसका टोकन होगा उसका नहीं होगा। सो दीज आर डिटर्मिनिस्टिक रूल बेस्ड टोकनाइजेशन मेथड्स। योर subword tokenization methods are usually machine learning based. The model learns these methods, so the tokenization is learned from a training data set. So the first step that I'm going to teach you is training the BPE on a corpus. How do you train BPE? And once you have a trained BPE, byte pair encoder, now you use it to tokenize a given text. ये दो अलग अलग चीजें हैं, तो अभी ज़हन में रखनी है। अभी जितने टोकनाइजर्स हैं इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि सेट ऑफ रूल्स फॉलो कर रहा है, ये एक एल्गोरिथम के थ्रू ट्रेन हो रहा है। ओके, so you when you're training you start with individual characters, so you take your entire corpus, you divide it into individual characters, सब कैरेक्टर अलग कर दी। now you find the most common pair of adjacent characters, सब पेयर्स को देखना है, लाइक योर बायोग्राम राइट। सो सब पेयर्स को देखना है और उनमें से सबसे फ्रीक्वेंट पेयर उठाना है, उस पेयर को मर्ज करके एक टोकन बना दिया और उसको वोकैबुलरी में भी शामिल कर दिया। शुरू में वोकैबुलरी में क्या है, सारे कैरेक्टर्स। नाउ यू ऐड टू द वोकैबुलरी दिस मर्ज्ड टोकन एंड देन यू रिपीट। दैट्स द एल्गोरिथम, दैट्स एज सिंपल एज दैट। लेट्स सी दैट हैपनिंग। ओके, सो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक कॉर्पस है और इसको मैंने कन्वर्ट करना है इस किस्म की चीज में। लेट्स स्टार्ट विद द एक्चुअल एग्जांपल। So my corpus is essentially this: hugging face, hug, hugger, learning, learner, learners learn. These are the words. I did not come up with the corpus, they did. I just copied it. So आप में से कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं। Get used to hugging face and the things which are available there. आपने इसको बहुत use करना होगा. Okay. From the corpus, I convert everything. I split it into characters. ठीक है? So ये मेरे characters बन गए. इस characters को मैं unique करके मैंने अपनी initial vocabulary निकाल ली. ठीक है? All simple. Now the next step is simply for me to go over this, look at it pairwise, and just start counting the frequency of pairs. Okay, so for example HU एक दफा मुझे यहाँ मिला है, फिर उसके बाद UG देखूंगा, फिर GG देखूंगा and so on. By the way, all of this could be written using I don't know 10-12 lines of Python. पूरे का पूरा लिखना ही इतना आसान है. So byte pair encoding is super simple to write. Okay, so ये पूरे से जब गुजरे तो मेरे पास ये सारे के सारे pairs आ गए. And obviously there are also conflicts. 4 के ऊपर जो है वो काफी सारे हैं. So because अच्छा ये क्यों है, क्योंकि मेरी कॉर्पस टॉय कॉर्पस थी। अगर ये ह्यूज होती तो फिर इतनी आसानी से ये इक्वल नंबर ना आ रहे होते एटलीस्ट शुरू में। लेकिन जब आपके पास इक्वल नंबर आ जाते हैं तो आप रैंडमली उनमें से कोई एक पिक कर लेते हैं। जस्ट पिक द वन ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वंस, फॉर एग्जांपल दी LE। तो अब LE जो 4 दफा आया है मैंने इसको उठाया। द नेक्स्ट स्टेप्स वुड बी मर्ज इट, go to the corpus, merge all occurrences of LE. So ये learning में और इस learner में और इस सब में ये सबको मुझे merge करना होगा. And then add LE here as well. So my base vocabulary will remain the same so that I can deal with unknown words later. I'll just add this new merged token to it. So you see LE यहाँ भी आ गया, LE यहाँ भी चला गया. Now I repeat. I go over the entire thing again. This time LE is a token and I find the pairs again. So, and I can see LEA का भी मेरे पास पेयर आया हुआ है. So LE is now contributing in this whole thing. And I find कि इनमें से सबसे कॉमन जो था वो LEA था. LEA को merge किया और सब जगह merge कर दिया. Now you see a pattern. It is beginning to actually start forming the root words. Interestingly. Now problem इसमें वो होगा कि across words भी share हो रहे होंगे, लेकिन जब ये बड़ा होना शुरू होंगे ना तो वो sharing भी खत्म होने लगेगी. Okay, so you keep doing this. You usually predefine either the number of iterations कि कितने merge iterations करने। आप जब आमतौर पे पढ़ेंगे किसी टोकनाइजर का पेपर तो उसमें लिखा होगा कितने iterations के लिए merging की है, या उसमें लिखा होगा किस vocabulary size को आप reach करना चाह रहे थे। तो मेरी vocabulary हर merge के बाद बढ़ती जा रही है।
सो आप या तो पहले से स्पेसिफाई कर लेते हैं आई एम लुकिंग फॉर अ वोकैबुलरी ऑफ 50,000 टोकन्स Why do you carry on? टाइप्स सॉरी, I personally या think आप ये स्पेसिफाई कर देते हैं कि मैं इसके इतने मर्ज इटरेशंस करना चाह रहा हूँ, सो बेस वोकैबुलरी कुछ भी हो इतनी इटरेशंस के बाद आई स्टॉप, ठीक है. सो ये यूजुअली दीज आर द इनपुट्स टू योर एल्गोरिथम. ओके, so this is the only thing which I now need, the ordered list of tokens. So now what I'm going to do, ये merges की एक ordered list है जो मेरे पास आ गई है. So this is all the rule base that I need. So L plus E, LE बनता है, LE plus A, LEA बनता है, LEA plus R, LEAR बनता है. ये इस तरतीब में मेरे पास rules हैं. And now we're ready to apply it to the test data. So for example मेरा test text जो है वो ये word है, hugs. और मैंने इसको टोकनाइज करना है. What am I going to do? I'll just go through my set of rules in this order and start tokenizing this word. LE इस पे असर नहीं हुआ, LE असर नहीं हुआ, इसका असर नहीं हुआ, इसका असर नहीं हुआ, पहला असर हुआ इस पे जाकर. So by the way, मैंने इसको full split कर दिया था पहले. So पहला असर हुआ HU से HU के रूल का, ये अप्लाई हुआ और ये अब 4 से 3 टोकन्स में कन्वर्ट हो गया. इनफैक्ट इस पे अगला भी लगेगा, ये HUG plus S बन गया. अब कोई और रूल इस पे अप्लाई नहीं होगा. So we're done tokenizing this word. This is how you tokenize a word using byte pair encoding. So just repeating the process, for training it, you take a corpus, you convert it into characters, you split it entirely into characters, you find the base vocabulary. Now, you look at character pairs, you count their frequencies, you find the most frequent character pair, you merge it, in fact token pair, let me just call it token pair. Token pair, you merge it, मर्ज करने के बाद इसको पूरी कॉर्पस में भी रिप्लेस करके मर्ज कर दिया और इसी तरह से मैंने इसको ऐड कर दिया अपनी वोकैबुलरी के अंदर. एंड और इस मर्ज रूल को अपने पास देख लिया, दिस इज माय फर्स्ट मर्ज रूल. एंड देन यू कीप डूइंग दिस विद एवरी एप्लीकेशन ऑफ द मर्ज रूल. यू आर एसेंशियली reducing, hopefully, if your training corpus was a good representation of your test data, then with every merge you are reaching for the highest, like the biggest bang for the buck. कि आप सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट वाले पेयर को जो है वो हर एक दफा रिमूव कर रहे हैं, उसमें से उसे कम कर रहे हैं. दैट्स वेयर द कंप्रेशन थिंकिंग कम्स इनटू प्ले. जब ये कंप्रेशन के लिए यूज होता है तो वहां होता है. 2 मिनट ठहर जाए, मैं आपके क्वेश्चंस बिल्कुल आखिर में लेता हूं. ओके, दिस इज दैट. नाउ लेट मी जस्ट वेरी क्विकली बिफोर आई एंड द क्लास, लेट मी जस्ट वेरी क्विकली टेल यू कि वर्ड पीस टोकनाइजेशन विच इज यूज्ड बाय BERT, गूगल के BERT में जो यूज होती है, ये किस तरह से डिफरेंट है. सो एसेंशियली द एंटायर एल्गोरिदम इज वेरी सिमिलर. द ओनली डिफरेंस इज इन चूजिंग व्हाट टू मर्ज. बीपीई कहता है मर्ज बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पेयर को मर्ज कर दो. ये कहता है नहीं 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 नहीं, फ्रीक्वेंसी नहीं, किसी और चीज की बेस पर करना है. किस चीज की बेस पर करना है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज टू टोकन्स being together rather than separate. So let's do that. Let's go there. Let's just go to the slide जहां के ऊपर हम ये काम कर रहे हैं. So you take your initial corpus. So again I'm training it. Training के लिए you take the corpus, you split it. अच्छा, अब आपको split जरा मुख्तलिफ नजर आएंगे. ये अब एक कन्वेंशन है जिससे ये लोग इसको स्प्लिट करते हैं. ये करते ही हैं कि वर्ड स्टार्ट के ऊपर कोई स्पेशल टोकन नहीं लगता. वर्ड के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं जो कि स्पेस सेपरेटेड नहीं थे, उनसे पहले एक स्पेशल कैरेक्टर अपेंड कर देते हैं. सो इन दिस केस ये डबल आपके पास हैश लगे हुए हैं, लेकिन इसमें कुछ और भी हो सकते हैं. देयर आर समटाइम्स स्पेशल कैरेक्टर्स दैट दे यूज. सो दिस इज एसेंशियली द सेम थिंग. इन्होंने पूरी की पूरी कॉर्पस पकड़ी है, ट्रेनिंग कॉर्पस, और उसको कैरेक्टर वाइज स्प्लिट कर दिया. ओके, नाउ you make your initial vocabulary. Now you start creating your pairs. So these are all the pairs that you found in this corpus. ठीक है. Now यहां से आगे there are a few ways. So मैं सिर्फ आपको खाली इसमें एक चीज दिखा देता हूँ. Yeah, these are usually the 3 methods which are used for scoring. Let's just focus on this one. ये समझ जरा आसानी से आ जाएगा. This is the ratio between the probability of these tokens occurring together divided by the probabilities of these tokens occurring separately. Independent, dependent. अगर ये टोकन अक्सर इकट्ठा आता होगा तो ये आंसर बड़ा हो जाएगा. और अगर ये, और फ्रैक्शन तो इसी की है हमेशा, और अगर ये अक्सर अलग होता होगा तो ये नंबर छोटा होगा. ठीक है. अब इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए
there are simpler proxies. Because इसमें एक मसला आता है, जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे ना, तो आपको इस कैलकुलेशन और इस कैलकुलेशन के लिए अपनी कॉर्पस को बदलना पड़ेगा। एक जिसमें ये कंबाइंड टोकन है और दूसरे में नहीं है, डिनोमिनेटर फर्क हो जाता है, तो ये थोड़ा सा इंप्लीमेंट करने में इसमें एक मसला आता है। सो देयरफॉर वी यूजुअली गो विद आइदर दिस, बिकॉज रिमेंबर फ्रॉम योर मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन, इसलिए आपने जो एमएल के अंदर पढ़ी थी, when you're just comparing two things in their magnitudes, you don't want actual probabilities, you just want to compare बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। तो with denominator या without denominator बड़े छोटे की तरतीब खराब नहीं होगी। So therefore इसमें इसमें फर्क नहीं होगा, इसमें और इसमें होगा। So this first one is saying just count these two tokens together, कितनी दफा इकट्ठे आए, कितनी दफा अलग अलग आए, the counts। और ये कह रहा है कि इसको नॉर्मलाइज भी करो, काउंट करने के बाद इसे लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, दिस फेवर्स लॉन्गर टोकन्स, ये दूसरा वाला तरीका, ये उसको फेवर करता है। अच्छा, तो अगर मैं इसकी बेस के ऊपर खाली ये काउंटिंग्स कर दूं, तो वी कैन सी हियर कि मेरे पास ये सारे स्कोर्स आ रहे हैं। सो आई जस्ट चूज द वन विद द हाईएस्ट स्कोर, और उसको यहाँ भी मर्ज कर दूंगा, एच यू है ये, यहाँ भी मर्ज कर दूंगा और यहाँ ऐड कर दूंगा। सो आई ऐड एच यू हियर एंड आई मर्ज एच यूज हियर एंड रिपीट। You keep doing this. तो ये करने के बाद we go over this whole thing again, we keep doing that and we're done with the tokenization. अगली क्लास में मैं शुरू यहीं से करूंगा, मैं यही आखिरी टोकनाइजेशन एक मरतबा फिर रिपीट करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा जल्दी से हुई है। वर्ड पीस दोबारा करूंगा, सबर सबर सबर, बैठे रहे, बैठ नीचे हो। एक काम आपने और करना है, गोना शेयर द स्लाइड्स विद यू टुडे। OpenAI has all of its tokenizers available here, so you can just go to this link and you can try out the GPT-3 legacy tokenizer, the GPT 3.5 and GPT-4 tokenizer, and then the GPT-4o and GPT-4o mini tokenizer. तीनों tokenizers हैं। What I want you to do is simply go here and play with it. आपको इंग्लिश का टेक्स्ट लिंक, आपने खाली लिंक पर जाना है, अभी कोड नहीं लिखना। So बस इस यहाँ जाएं, यहाँ जाके टेक्स्ट पेस्ट करें, and it's gonna show you the tokens. Look at the tokens and see if they make sense to you. ठीक है, और फिर एक एक्सपेरिमेंट और करें, कहीं से उर्दू का टेक्स्ट पकड़ें, विकी उर्दू से उठा लें, and give it the same. And now compare the two in terms of the tokens if the words are the same. What you see here, number of words same है, उर्दू के tokens बहुत ज्यादा है, इंग्लिश के tokens बहुत कम है। When you come next time, I want each and every one of you, और आपस में डिस्कस ना कीजिएगा, I want each and every one of you to have an explanation for this. Why would it tokenize Urdu to more tokens and English to less tokens? Why would it be that? ठीक है, ये अगली क्लास में करके आएंगे। Thank you so much.